Good morning, students. Today we are going to read 15th chapter of our English reader book. So, students, let's open page number 89 of your English reader book. Okay, and hold a pencil in your hand and let's start reading the book. What is the name of our chapter? The Mango Story. In this chapter, we will read a story about the mango. Okay, so let's begin to read. It was a day the children of a spring school looked forward Grandparents' Day. It meant lots of fun, storytelling, games, activities, and of course singing. Amit's grandfather, Mr. Sharma, was quite a favorite with the children of class 5th. He always had funny stories to tell. He would ask the children questions in between, sing a song or two, and sometimes get them to wear masks and act. इस चैप्टर में एक ऐसे दिन की बात हो रही है जिसमें स्प्रिंग वैली स्कूल्स के बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स डे का वेट कर रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स डे का मतलब था लॉट्स ऑफ फन, स्टोरी टेलिंग, गेम्स, एक्टिविटीज़ एंड सिंगिंग। अमित के ग्रैंडफादर मिस्टर शर्मा क्लास 5th के बच्चों के बहुत फेवरेट थे। उनके पास हमेशा फ़नी स्टोरीज़ होती थी सुनाने के लिए। जब भी मिस्टर शर्मा स्टोरी सुनाते थे तो वो बीच बीच में बच्चों को क्वेश्चंस भी करते जाते थे। एक दो गाने भी गाते थे और उन्हें मास्क पहनकर एक्ट करने के लिए भी कहते थे। लेट्स रीड नेक्स्ट पैरा। What story are you going to tell us today, Grandpa? Asked one of the children. Do you want to listen an animal's story or a funny story about silly people? A funny story about silly people, they all chimed. Well, I have got your story ready, but first a riddle. One day a man was walking through the streets when he saw a small fruit shop. There he saw an apple and a man. Grandpa coughed. Go. Grandpa paused and asked, what did the man buy and eat? We'll give you answer later. Tell us the story first, they demanded. So Grandpa began his story. Children में एक बच्चे ने पूछा कि आप आज हमें कौन सी स्टोरी सुनाएंगे। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम लोगों को कौन सी स्टोरी सुनना है आज, एनिमल स्टोरी या फनी स्टोरी। चिल्ड्रन रिप्लाई करते हैं अ फनी स्टोरी अबाउट सिली पीपल्स। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सबके लिए फ़नी स्टोरी रेडी है, पर उसके पहले एक रिडल है। रिडल मीन्स क्या होता है? पहेली। तो ग्रैंडपा की रिडल क्या थी? एक दिन एक मैन स्ट्रीट से गुजर रहा था। उसने एक छोटी सी स्मॉल फ्रूट शॉप देखी और वहाँ उसने एक एप्पल देखा। ग्रैंडपा थोड़ी देर रुकते हैं, फिर पूछते हैं कि उस मैन ने क्या बाय किया और क्या ईट किया। तो बच्चे कहते हैं कि हम बाद में इसका आंसर देंगे, पर अभी आप हमें स्टोरी सुनाइए। फिर ग्रैंडपा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। A certain man by the name of Gopal was expecting to visit from a friend he had met after many years. He knew that his friends liked mangoes very much, so he ordered his servant to buy the finest kg of mangoes in the market. The servant came back with 2 kg of mangoes to his master. Gopal was satisfied that they were good and ordered the servant to serve them to the guest when he arrived. एक मैन जिसका नाम गोपाल था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका एक फ्रेंड उसे कई सालों से जो नहीं मिला है वो उसे मिलने आने वाला है। गोपाल जानता था कि उसके फ्रेंड को मैंगोज़ बहुत पसंद है, इसलिए उसने सर्वेंट को मैंगोज़ लाने के लिए मार्केट भेजा। सर्वेंट मार्केट से 2 केजी मैंगोज़ लेके अपने मास्टर के पास आ जाता है। गोपाल सेटिस्फाइड था कि मैंगोज़ अच्छे हैं और सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जब गेस्ट आए तब मैंगोज़ उन गेस्ट को सर्व करे। The mangoes smelled so sweet. I wonder how they taste like. If they smell so sweet, they must. Now students, let's open page number 89. Let's start reading. Taste even sweeter, thought the servant as he cut them. I will taste just this one piece. However, he could not resist the temptation to go on eating. One became two, two became four, and soon there were no more mangoes left. Suddenly he saw the guest coming toward the house. Oh no, what am I going to do now? Think, think. He thought fast. He grabbed a rusty knife, rushed to his master, and said, I can't cut the mangoes. The knife is too blunt. I will sharpen it, Gopal offered,
and went to the sharpening wheel in the garden set. मैंगोज़ बहुत ही स्वीट थे और उनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। जब मैंगोज़ में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो वो टेस्ट में कितने अच्छे होंगे, सर्वेंट ये अपने माइंड में सोचने लगता है। जब वो मैंगोज़ काट रहा था और ये ही वो सोच रहा था कि ये कितने अच्छे होंगे टेस्ट में, तो वो एक पीस टेस्ट करता है और एक पीस खाने के बाद फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा खाता चला जाता है। धीरे धीरे मैंगोस खत्म हो जाते हैं। सडनली सर्वेंट देखता है कि गेस्ट घर की तरफ आ रहा है। अब तो वो सोचता है कि अब वो क्या करे। ये सोचते हुए वो एक रस्टी नाइफ पकड़ता है और अपने मास्टर की तरफ जाता है और कहता है कि मैं ये मैंगोस कट नहीं कर सकता, नाइफ बहुत ही ब्लंट है। गोपाल कहता है कि मैं इसे शार्प कर दूंगा। गोपाल नाइफ लेकर उसे शार्प करने के लिए गार्डन में चला जाता है। The servant ran out to meet the man who was coming. Be aware, he said anxiously. Don't come to your house, he pleaded. My master has gone mad. He wants to cut off both of your ears. फिर सर्वेंट दौड़ता हुआ उस मैन के पास जाता है जो गोपाल का फ्रेंड था, जो घर की तरफ आ रहा था। बी अवेयर ही सेड। वो उसे एनेक्सियसली सर्वेंट कहता है कि अवेयर हो जाओ। गोपाल के फ्रेंड से कहता है वो कि हमारे घर में आप मत आओ, हमारे मास्टर यानी कि मिस्टर गोपाल मैड हो गए हैं वो और आपके दोनों काटना चाहते हैं। कट माई ईयर्स, exclaimed the man, turning pale. Why, yes, see, there he is sharpening a knife, said the servant, pointing at his master. The man saw that his host did really have a knife in his hand and was sharpening it. He also had a very strange look on his face. ये सुनकर कि गोपाल उसके दोनों ईयर्स कट करना चाहता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसका? गोपाल के फ्रेंड का। और वो सर्वेंट से पूछता है क्यों, वो ऐसा क्यों करना चाहता है, मेरे ईयर्स क्यों काटना चाहता है। तो सर्वेंट गोपाल के फ्रेंड से कहता है देखो मेरे मास्टर कैसे नाइफ को शार्प कर रहे हैं। गोपाल का फ्रेंड देखता है कि गोपाल सच में नाइफ को शार्प कर रहा है और उसके फेस पर बहुत ही स्ट्रेंज लुक भी है। I am not going in there, he told the servant firmly, and turning around quickly, started walking away as fast as he could. The servant rushed back to his master and told him that the man he had invited was fleeing with the mangoes. What, said his master, horrified. The greedy fellow. Has he taken all the mangoes? Yes, said the servant. गोपाल का फ्रेंड सर्वेंट से कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये कहते हुए वो टर्न लेता है और जितनी जल्दी भाग सकता था भागना शुरू कर देता है। फिर सर्वेंट अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि आपने जिसे इनवाइट किया था वो मैंगोस लेकर भाग रहा है। ये सुनकर गोपाल चौंक जाता है और सोचता है कि उसका फ्रेंड बहुत ही ग्रीडी है और सर्वेंट से पूछता है कि क्या वो सारे मैंगोस लेकर भाग गया था। तो सर्वेंट कहता है हाँ, वो सारे मैंगोस लेकर चले गए हैं। Gopal, with the knife still in his hand, ran out after the man, shouting, Please give me one at least. The other man thought he was asking for one of his ear and he ran for his life. And the children split their sides laughing as Grandpa mimicked the old man holding on to his ears and running like the wind. That was a really funny story, said Asraf. गोपाल अपने हैंड में नाइफ लेकर जोर से चिल्लाता हुआ अपने फ्रेंड के पीछे पीछे भागता है और क्या कहता है, प्लीज़ गिव मी वन एट लीस्ट, मुझे एक तो देते जाओ। ये सुनकर उसका फ्रेंड सोचता है कि शायद गोपाल उसके एक कान मांगना चाहता है, वन ईयर की बात कर रहा है और वो और ज़ोर ज़ोर से अपनी जान बचाने के लिए भागता चला जाता है। ग्रैंडपा जिस तरह से मिमिक मीन्स क्या होता है, कॉपी करते हैं। वो उसकी कॉपी करके जिस तरह से कान पकड़ के भागने की कॉपी करके बता रहे हैं उसे बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से इसको देखकर हंसने लगते हैं कि उसका फ्रेंड अपने कानों को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से भागता जा रहा है जैसे हवा चल रही है। फिर अशरफ कहता है कि ये रियली बहुत ही फनी स्टोरी है। And now for the riddle. Has anyone thought of the answer? Asked Grandpa. Yes, I have. Meena cried excitedly. I think you meant he saw a man go, so he only bought an apple. फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि चलो अब बताओ रिडल का आंसर क्या था, क्या किसी को पता है। तो मीना एक्साइटेडली आंसर देती है कि हाँ, मुझे पता है कि जो मैन था उसने एक जो शॉप थी उस पर क्या देखा था, एप्पल। तो उस एप्पल ही उसने खरीदा और एप्पल ही उसने खाया। नाउ टर्न
पेज नंबर 91। ब्रिलियंट थिंकिंग मीना, लेट्स क्लैप फॉर हर, सेड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं मीना ने बहुत अच्छा सोचा और उसके लिए क्लैपिंग करो। एंड फॉर यू ग्रैंडपा, दे ऑल चॉर्स। सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आस्क्ड ग्रैंडपा। Don't do bad things and you won't have to tell lies, Joyce observed promptly. Grandpa was happy that they had got the point. फिर लास्ट में ग्रैंडपा पूछते हैं कि आपने इस स्टोरी से क्या लर्न किया, है ना। तो क्या उसमें से जो जॉइस था उसने प्रॉम्प्टली ऑब्जर्व करके बताया कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ग्रैंडपा सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चों को इसका पॉइंट समझ में आया, इस स्टोरी से क्या लेसन उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें मिल गया। नाउ students, now our chapter is finished. You have to try to complete the book exercise of this chapter, okay, and learn this chapter properly. Stay safe, stay healthy, and keep learning.